my dear students, welcome to today's session. This is Achal, your mentor, and we are taking up SST for class 6. This is Civics, chapter number 5, Rural Local Government and its Administration. Like जो हमारी जो villages होते हैं उनमें जो local governments होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे and we'll also talk about its administration, कैसे उन rural areas को govern किया जाता है. Right, so we'll be learning about need for local government. इस local government की क्या ज़रूरत थी, ग्राम सभा, what is village पंचायत, women and पंचायत, women का क्या रोल है पंचायत में, न्याय पंचायत क्या होती है, we'll learn about block समिति, जिला परिषद, and also we'll be talking about maintenance of civic amenities. Right, so the local level government is one which looks after the local affairs of the people. जो छोटे छोटे issues होते हैं locally जो handle किए जाते हैं उनको local government look after करती है उन issues को. The lifestyle and need of the people living in rural area are different from those living in urban area. So जो लोग villages में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, उनका lifestyle cities and towns में रहने वाले लोगों से काफ़ी different होता है. Therefore, system of governance is also different. इसी वजह से जो उनको administration का जो system है, governance का system है, वो भी different है. Therefore, there is a system of administration which is permanent in nature. So, let's see what is the need for local government. India is a huge country spread of thousands of kilometers, right? हमें पता है इंडिया एक बहुत बड़ी country है, thousands of kilometers तक फैली हुई. All people living here, क्या क्या चाहिए सबको? They need food, shelter, water, electricity, all these things are needed by the people. They also need safety, justice and peace. इन सब चीज़ों के साथ साथ उन्हें safety चाहिए, security चाहिए, उन्हें peace भी चाहिए, एकदम शांति चाहिए, and they also need justice. अगर कोई उनके साथ injustice होता है तो उनके साथ न्याय होना चाहिए. The need of the people living at different places is different. अलग अलग जगह पे रहने वाले लोगों की needs भी different होती हैं. So the government of state or central level cannot look after their needs directly. So छोटी छोटी जगहों पर हर जगह जो state government है या central government है, they cannot reach out to the people. So they need some mechanism at the village level which could become a link between the government and the village people. So some mechanism was needed. कुछ ऐसा चाहिए था that could act as a link जो गवर्नमेंट और विलेजर्स के बीच में एक लिंक बनता. सो दैट वाज द नीड फॉर लोकल गवर्नमेंट. द पार्टिसिपेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एसेंशियल एज दे आर अफेक्टेड बाय द आउटकम. सो डू यू नो चिल्ड्रन द टर्म पंचायती राज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. जो ब्रिटिश जिस टाइम हमें रूल कर रहे थे उस टाइम पे ये टर्म बनाई गई थी पंचायती राज. राज मीन्स गवर्नेंस or government, and Mahatma Gandhi advocated the Panchayati Raj as a decentralized form of government where each village is responsible for its own affairs as the foundation of India's political system. So Mahatma Gandhi जी ने भी इसका समर्थन किया था, इसको advocate किया था कि ये जो पंचायती राज system है it is going to be a decentralized kind of system जहाँ पर local जो villagers हैं village level पर ही वो अपने issues को resolve कर सकते हैं, उसको govern कर सकते हैं अपने village को. So each village is responsible for its own affairs as the foundation of India's political system. So this is the basic level. सबसे नीचे grassroots level पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पंचायती राज system आता है. This is the essence of the पंचायती राज. They are the lowest level of government. सबसे lowest level of government है हमारे पंचायती राज system. Clear? Now let's see the essential features of this पंचायती राज system. For easy administration, the states have many districts, right? So national level पे हमारी कौन सी government होती है? Central government. Then our entire country is divided into different states. State level पे हर एक state की अपनी एक state government होती है. Then every state is divided into several districts. तो district level पर होती है हमारी जिला परिषद, right? Then every district is divided into several blocks जहाँ पर होती है हमारी block समिति, and every block it comprises of a few villages. तो villages जो है हमारा वहाँ पर होता है पंचायती राज system, पंचायत, right? So it is the lowest level of government. Now for easy administration, the states have many districts.
ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ मैनी ब्लॉक्स, हर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ब्लॉक्स हैं, एंड ईच ब्लॉक हैज़ वन और मोर विलेज, हर ब्लॉक में एक या एक से ज़्यादा विलेज हैं. एन एरिया विथ 500 पीपल इज कॉल्ड अ वार्ड, राइट. एक एरिया, एक विलेज जिसमें 500 लोग होते हैं वो एक वार्ड माना जाता है. द वार्ड में हैव द कंप्लीट विलेज और अ पार्ट ऑफ इट. अब हो सकता है उस वार्ड में एक पूरा विलेज भी आ जाए, या फिर उसके अंदर अगर ज़्यादा लोग हैं तो इट कुड बी वन वार्ड कुड बी ओनली अ पार्ट ऑफ द विलेज. In a village there are lesser number of people as compared to a city. They meet one another regularly and know and understand one another's problems, right. Villages में कम लोग रहते हैं when we compare it to the number of people living in cities and towns. वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं. So लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से रेगुलरली मिलते रहते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स से परिचित होते हैं. They know each other's problems. While in the cities, if we talk about that, many times people do not even know who is living in the neighborhood. Cities में लोगों की life इतनी busy है that they don't even know who lives in their neighborhood. In the villages, most of the times the facilities and resources are not adequately available and people have to share limited resources, right. So therefore they have more interaction and bonding. So villages में बहुत बार ऐसा होता है कि उनके पास जो resources हैं वो लिमिटेड होते हैं, राइट. सो दे शेयर थिंग्स विद ईच अदर, वो रिसोर्सेज को एक दूसरे से शेयर करते हैं, उससे उनके बीच में कनेक्शन और बॉन्डिंग बढ़ती है. द पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एट द ग्रास रूट लेवल. एकदम लोएस्ट लेवल पे ये गवर्नेंस सिस्टम है विच एम्स एट ब्रिंगिंग पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग टू द पीपल in the 3 levels as depicted below, right. So this is at the grassroots, this panchayati raj system, and इसका एम क्या है, to bring power of decision making to the people, जिससे कि लोग अपने decisions खुद ले सकें. Now let's talk about ग्राम सभा. ग्राम का मतलब होता है village and सभा का मतलब होता है meeting, right. So ग्राम means village and sabha means meeting. So ग्राम सभा is the meeting of all adults of the village. Village के जितने भी adults हैं, right, they all take part in this meeting known as Gram Sabha. This meeting is held in villages to decide on various issues related to the people of the village. लोगों से related कुछ भी issues हैं तो उन पर discussion करने के लिए, right, उन पर कुछ decisions लेने के लिए ये ग्राम सभा की meetings बुलाई जाती हैं. It helps all people to take part in the activities of the village and voice their views and concerns. So इससे क्या होता है ग्राम सभा की मीटिंग से, इससे जो भी लोग हैं सारे लोग एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं, अपने व्यूज़ आगे रख सकते हैं, एंड दे कैन रेज देयर कंसर्न्स. अगर उन्हें किसी चीज़ का कंसर्न है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, सो दे ऑल कैन रेज देयर वॉइस इन दी मीटिंग. It is here that the people can convey the needs of the society. उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी यहाँ पर बता सकते हैं. People can also speak on behalf of others who are not physically present in the meeting or are shy of voicing their needs. लोग किसी और के behalf पर भी कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हैं. Maybe that person is not present in the meeting, उसकी कोई प्रॉब्लम है, so anybody else जो उसकी तरफ से प्रॉब्लम बता सकते हैं. एंड ऑल्सो अगर कोई शाय फील करता है टू स्पीक इन दी पंचायत, तो वो लोगों के सामने अपनी मीटिंग में बोलने से शाय फील करता है तो कोई और भी उसकी जगह से बात रख सकता है. नाउ व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ग्राम सभा? everyone above the age of 18 is eligible to attend the meeting. यानी अगर आप एडल्ट हैं, above 18 हैं, तो आप इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं. All people attending have equal rights to express their views on matters concerning the village. और जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं सबके पास इक्वल राइट है अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का, अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस करने का. It is the key factor in making the पंचायत fulfill its role and functions. जो मीटिंग्स हैं यही की फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये जो हमारी पंचायत है वो अपने रोल्स को, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाती हैं. It is the place where the proposals of the works to be taken up by the पंचायत are conveyed to the people. यहीं पे जो पंचायत लोगों की डेवलपमेंट के लिए जो काम करना चाहती हैं उनको कन्वे किया जाता है, लोगों तक पहुंचाई जाती है ये बात. यस, द पंचायत इज़ प्लानिंग टू डू दिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज. सो ये सब बातें लोगों तक पहुंचाई जाती हैं इन द ग्राम सभा मीटिंग्स. द ग्राम सभा कीप्स अ चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत. They check that funds are not misused and there is no favoritism. ये जो ग्राम सभा है ये पंचायत की फंक्शनिंग पर पूरा
चेक रखती है कि कहीं जो फंड्स आ रहे हैं उसका मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी के प्रति फेवरेटिज्म तो नहीं आ रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप को फेवर तो नहीं किया जा रहा है. सो दिस ग्राम सभा कीप्स अ चेक ऑन दैट. The Gram Sabha can remove the members of the पंचायत for any wrongs committed by them. अगर members हैं पंचायत के वो कुछ गलत काम करते हैं तो ग्राम सभा के जो members हैं वो उसको remove भी कर सकते हैं. Now the secretary of the ग्राम सभा का एक secretary भी होता है and that is appointed by the government. वो government ही appoint करती है. The secretary is responsible to organize the ग्राम सभा meetings and also of the पंचायत. So ये जो meetings होती हैं ग्राम सभा की, पंचायत की, ये सब organize करना secretary का काम है. This secretary is also the secretary for the पंचायत. जो secretary ग्राम सभा का है वही पंचायत के भी secretary होते हैं. The secretary is supposed to maintain all records of the proceedings of the sabha and the पंचायत. तो ये जितनी भी मीटिंग्स होती हैं सभा की या पंचायत की उन सबको रिकॉर्ड करना सेक्रेटरी का काम करता है. सारी प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं सेक्रेटरी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी विलेज पंचायत. हमने ग्राम सभा की बात की. नाउ विल टॉक अबाउट विलेज पंचायत. इसका बैकग्राउंड कहाँ है, कहाँ से क्या है, कहाँ से निकल के आता है ये पंचायत जो वर्ड है. सो फ्रॉम सेंचुरीज अगो people started a system of selecting their own headman. हर अगर हम ancient people की भी बात करें तो हर जो भी लोग होते थे वो अपना एक head choose करते थे, अपना अपना सबसे जो leader है उसे choose कर लिया करते थे. So then they found that every decision could not be left to one person, as his wisdom and decision could be biased and may favor someone close to him. तो उन्होंने लोगों ने slowly and gradually realize किया कि जो ये सारे डिसीजंस हैं, सारी पावर्स हैं, किसी एक पर्सन को नहीं दी जा सकती. राइट, एक पर्सन पर डिपेंड नहीं किया जा सकता कि वो हमेशा सही ही सोच रहा होगा. राइट, और वो किसी को फेवर नहीं करेगा. सो धीरे धीरे लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ. सो दे अडॉप्टेड अ सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग 5 पीपल एज द हेड ऑफ द ग्रुप. तो उन्होंने एक की बजाय एक ग्रुप के 5 हेड्स चूज करने स्टार्ट किए. दिस वॉज कॉल्ड द पंचायत. सो पंच मीन्स 5. सो इसी से ये वर्ड पंचायत निकल कर आया. द पंचायत एक्टेड डिसीजंस ऑन ऑल कम्युनिटी मैटर्स रिगार्डिंग डेवलपमेंट एंड जस्टिस. सो विलेज की, रूरल एरियाज की जो डेवलपमेंट और जस्टिस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स थे उस पर पंचायत ही डिसीजंस लेती है. दे वर 5 पीपल सो दैट इफ देयर वाज डिफरेंस इन ओपिनियन अमंग देम then the majority of 3 is necessary to finalize the decision. So 5 लोग होते थे. अगर सपोज पाँचों के पाँचों किसी एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते देन क्या किया जाता है, जिस भी मेजॉरिटी होती है, जिस भी डिसीजन में मेजॉरिटी होती है वही डिसीजन मान लिया जाता है. जिसमें भी 3 या 3 से ज़्यादा लोग अग्री करते हैं वो डिसीजन फाइनल होता है. नाउ व्हाट इज द मॉडर्न पंचायती सिस्टम? In modern times, the government of India decided that it is the local people who are the best judges for local issues. Local issues जो हैं उनके best judge कौन होते हैं? वहीं के रहने वाले लोग. So they formalized the system of panchayats and proper elections are held to elect the panchayat. So ये पंचायत का जो पंच select करने का जो system है उसे काफ़ी formalize कर दिया गया है और proper elections होते हैं to elect the panchayat. Since the population has increased, the present day panchayat has more number of people heading it. अब 5 की बजाय अब क्योंकि villages में भी population increase हो रही है, बड़े बड़े villages हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी 5 से ज़्यादा हमारे जो सरपंच हैं, पंच हैं, उनको नियुक्त किया जाता है. There could be 7 to 17 panchayats depending on the number of people in an area under one panchayat. Depending on कि कितने लोग हैं उस पंचायत के अंदर, उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है. 7 से लेकर 17 तक पंच हो सकते हैं उस पंचायत में. राइट, नाउ द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शंस फॉर द पंचायत. अब पंचायत के इलेक्शंस कौन हेल्ड करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन. द पंचायत आर इलेक्टेड फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years. ये पंच भी जो है ये 5 साल के लिए ही इलेक्ट किए जाते हैं. Any person above the age of 21 is eligible to stand for the election to the post of पंच. अगर आप पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, पंच बनना चाहते हैं, तो आपको 21 years से बड़ा होना चाहिए. You should be 21 or above to stand in the elections. Some seats are reserved for women and people from the scheduled caste and scheduled tribes. So कुछ seats जो हैं इस पंचायत में वो women के लिए रिजर्व की गई हैं
और कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। 1 person कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम 1 ward विच हैज़ 500 एडल्ट वोटर्स। सो एक वार्ड के अंदर 500 एडल्ट वोटर्स होते हैं और उस एक वार्ड में से एक ही पर्सन को इलेक्ट किया जाता है। ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट्स दी सरपंच। ग्राम सभा भी सरपंच की इलेक्शन में रोल प्ले करती है। इफ एनी मेंबर ऑफ द पंचायत नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर दैट वैकेंसी। अगर किसी पंच की डेथ हो जाती है या फिर उनके किसी मिसबिहेवियर की वजह से उनको रिप्लेस करना पड़ता है तो फ्रेश इलेक्शंस होते हैं फॉर दैट वेकेंट पोस्ट, राइट। नाउ फंक्शंस ऑफ द पंचायत। अब इस पंचायत के काम क्या क्या हैं? The panchayat meets regularly to consider, plan and propose development projects for their area. अब ये पंचायत है, ये रेगुलरली इसकी मीटिंग्स होती रहती है, लोग मिलते रहते हैं to consider, plan and propose development projects। अपने एरिया को कैसे डेवलप किया जाए उसके लिए प्रपोजल्स डिस्कस करती है पंचायत। The ग्राम सभा then approves the same or recommends modifications। फिर जो डिसीजंस डेवलपमेंट के लिए जो पंचायत लेती है वो ग्राम सभा को भेजे जाते हैं एंड देन ग्राम सभा की मीटिंग होती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो उन सब चीज़ों को मानते हैं, अप्रूव करते हैं, या फिर इफ दे वांट सम चेंजेस, सम मॉडिफिकेशंस, तब वो ग्राम सभा मीटिंग में डिसाइड किया जाता है। कमिटीज आर फॉर्म टू कैरी आउट वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क्स। द कमिटीज हैव मेंबर्स फ्रॉम द ग्राम सभा एंड द पंचायत। ग्राम सभा और पंचायत दोनों के मेंबर्स से एक कमेटी बनाई जाती है जो which who carry out the various types of work, अलग अलग टाइप के वर्क कैरी आउट करने के लिए एक कमेटी बिठाई जाती है। They does implement various development plans for village। तो जो भी डेवलपमेंट प्लान्स डिसाइड किए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना इस कमेटी का काम होता है। The पंचायत performs many functions। जो पंचायत होती है बहुत सारे काम करती है। Some of them are supply of water for domestic use through the development of wells, hand pumps, water tanks। इन सब चीज़ों को डेवलप करके लोगों को डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी पहुंचाना पंचायत का काम है। कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ रोड्स, ड्रेन्स एट्सेट्रा। सड़कें बनाना गांव में यूज़ के लिए वो पंचायत का काम है। ड्रेन्स यानी नालियाँ बनाना जिससे कि डिस्पोज ऑफ किया जा सके जो वेस्ट है, वो सब काम भी पंचायत का है। मेंटेनिंग सैनिटेशन, प्रॉपर जो सीवेज डिस्पोजल है, राइट, उसको गार्बेज को कलेक्ट करना, उसे डिस्पोज ऑफ करना, ये सब काम पंचायत का है। रनिंग द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड इंश्योरिंग पब्लिक हेल्थ बाय इनॉक्यूलेशंस, वैक्सीनेशंस एट्सेट्रा। सो ये जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशंस लगाए जाते हैं लोगों की जो हेल्थ कंसर्न्स हैं जितने भी, उनके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पंचायत ने खोले हुए होते हैं एंड देयर इंश्योर पब्लिक हेल्थ। पब्लिक की जो हेल्थ है वो पंचायत की जिम्मेदारी है। कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग पब्लिक बिल्डिंग्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। तो जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक के जो यूज़ के लिए बिल्डिंग्स हैं, जैसे बैंक्स हो गए वहाँ पर, या फिर हॉस्पिटल्स हो गए, उन सबको कंस्ट्रक्ट करना, मेंटेन करना, रिपेयर करना, ये सब भी पंचायत का काम है। और जो लैंड्स होते हैं वहाँ एनिमल्स के जो ग्रेजिंग के लिए जो लैंड्स होते हैं, चरने के लिए, उनको भी मेंटेन करना पंचायत का काम है। Provision and maintenance of street lights on the roads and public places। So places पे, public places पे street lights provide करना and then also maintaining them is the duty of the panchayat। Maintain records of birth, death and marriages in the villages। So whatever और ये जो records होते हैं, birth के भी certificates बनाए जाते हैं, death certificates बनाए जाते हैं and marriage certificates are also made to keep a record of all these things। ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग फेयर्स, बाज़ार्स, तो मेले लगते हैं वो सब काम पंचायत का होता है। बाज़ार लगाना, दीज आर ऑल वर्क्स ऑफ दी पंचायत। वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, प्राइमरी स्कूल्स एंड पब्लिक लाइब्रेरी। सो बच्चों की भलाई के लिए काम करना, या फिर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना एंड पब्लिक लाइब्रेरीज बनाना भी पंचायत का ही ड्यूटी है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड नॉलेज टू फार्मर्स अबाउट न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक्स। फार्मर्स को एग्रीकल्चर में सपोर्ट करना, उन्हें नई नई जो टेक्निक्स आ रही हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, नए वेरिएंट्स ऑफ सीड्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, उस सब में फार्मर्स की सपोर्ट करना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना भी पंचायत का काम है।
वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़, वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़ क्या होती हैं? सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए भी जो लोगों की ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं जो विलेज की सेफ्टी का, सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करना भी पंचायत का काम है, राइट? सो दीज आर ऑल दी फंक्शंस, मेजर फंक्शंस ऑफ दी पंचायत। नाउ लेट्स सी, पंचायत के पास पैसा कहाँ से आता है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम? इट इम्पोजेस टैक्सेस ऑन हाउसेज एंड शॉप्स, हाउस टैक्स कलेक्ट करते हैं, शॉप्स से भी टैक्स कलेक्ट करती है पंचायत, राइट? इट कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम विलेज मार्केट्स एंड फेयर्स, जो मेले लगते हैं, विलेज मार्केट्स जो हैं उनसे भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है। इट इम्पोजेस फी ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड एनिमल्स, अगर आपको कोई ज़मीन खरीदनी है और इफ़ यू वांट टू परचेज एनिमल्स देन ऑल्सो टैक्स इज अप्लाइड ऑन दैट। डोनेशन कलेक्शंस फॉर कम्युनिटी वर्क, इफ़ यू वांट टू गेट एनी कम्युनिटी वर्क डन, अगर आपको कम्युनिटी के लिए कुछ करना है तो डोनेशंस कलेक्ट की जाती हैं फ्रॉम द पीपल। ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी ग्रांट्स देती हैं, पैसा देती हैं, अगर आपको कुछ डेवलपमेंट करानी है देन आप आगे स्टेट तक ये अपनी बात पहुंचा सकते हैं दैट दिस नीड्स टू बी डन, और फिर स्टेट से भी आपको पैसा मिलता है उस काम के लिए। इट गेट्स शेयर ऑफ द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम दी विलेज, जितना भी विलेज में जो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट होता है, पैसा कलेक्ट होता है, उसका भी कुछ शेयर पंचायत को मिलता है। क्लियर? Now let's talk about women and panchayat. The government has tried to give equality to all sections of the society. It was found that mostly men came forward to become panchas and that too from the rich and powerful community in the villages. So ऐसा देखा गया कि सिर्फ जो men हैं वही आगे आते थे पंचों के इलेक्शन के लिए, और वो भी बहुत रिच फैमिलीज से बिलोंग करने वाले जो लोग होते थे वही लोग पंच बना, मतलब पंचों के इलेक्शंस में आगे आते थे। So the government instituted reservation for women to the tune of 33% in the seats for panchas. So women को 33% का कोटा उनके लिए रिजर्व किया गया है कि पंचों में 33% जो हैं वो women होंगी। This means that only women candidates can take part in a ward which has been reserved for women. So वो wards जो सिर्फ women के लिए रिजर्व किए गए हैं उसके अंदर सिर्फ women candidates ही खड़ी हो सकती हैं। 33% is reserved for them. This policy has two roles. इसके दो कारण थे ऐसा करने के, to uplift women and ensure that they get equal share in decision making, right? जिससे कि women को uplift किया जा सके, उन्हें empower किया जा सके और उनका भी equal role हो decision making में, decision making power आनी चाहिए women के पास। तो गवर्नमेंट का एक तो मेन ये एम था। Then it was also to solve women and child related problems which were overlooked by the men. जो men थे जब वो पंच बनते थे so they used to overlook, वो नज़रअंदाज कर देते थे the problems related to women and children. So अब जब women खड़ी होंगी उसमें पंचों में women भी होंगी then they will take decisions in favor of women and children. उनके related issues को भी ध्यान में रखा जाता था, right? So these were the two main roles of this policy of reserving seats for women in the panchayats. Now what is न्याय पंचायत? न्याय पंचायत क्या होती है? न्याय का मतलब होता है justice, right? So the judicial system is also brought to the village level so as to provide speedy justice. अब अगर आप हर इशू के लिए स्टेट कोर्ट जाएंगे या नेशनल कोर्ट में आप जाके अपील करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतने सारे इश्यूज़ हैं, कई बार बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ भी होते हैं जो इजीली रिजॉल्व किए जा सकते हैं। सो जुडिशियल लेवल को लोकल लेवल पर लेकर आया गया है। जुडिशियल सिस्टम इज ब्रॉट टू दी विलेज लेवल जिससे कि स्पीडी जस्टिस मिल सके। छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उनका बहुत जल्दी से आपको जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। देयर इज़ नो नीड फॉर हायरिंग लॉयर्स, उसके लिए आपको कोई वकील हायर करने की ज़रूरत नहीं है। दिस हेल्प सेव टाइम एंड एक्सपेंडिचर, पैसा भी बचता है एंड यू सेव योर टाइम ऑल्सो। द न्याय पंचायत इज फॉर्म्ड बाय द पंचायत बाय इलेक्टिंग पीपल फ्रॉम द विलेज, राइट। पंचायत ही ये न्याय पंचायत बनाती है बाय इलेक्टिंग चूजिंग पीपल फ्रॉम द विलेज ओनली। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द न्याय पंचायत? इट गिव्स डिसीजंस ऑन ऑल माइनर केसेस कमिंग अप टू देम। उनके पास जो छोटे छोटे केसेस आते हैं उन सब पे फैसला सुनाती है और लोग उस फैसले को मानते भी हैं। सो जुडिशियल पावर क्या है न्याय पंचायत की? इट डिसाइड्स माइनर केसेस रिलेटेड टू लैंड, हो गया ज़मीन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, चोरी चकारी से रिलेटेड, थेफ्ट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट्स होते हैं, राइट, विद इन इट्स एरिया। सो ये सब इश्यूज़ को रिजॉल्व करना न्याय पंचायत का काम है।
Both the parties are required to appear before the panchayat to plead their case. So दोनों तरफ की जो parties हैं वो अपना केस सुनाने के लिए पंचायत में मौजूद होनी चाहिए. The decisions arrived at are usually accepted by the people. और जो decision न्याय पंचायत लेती है लोग उसे usually mostly accept भी कर लेते हैं, right? Now let's talk about block samiti, right? The next level of governance is at the block level. हमने अभी कौन सी level की बात की? We talked about village level. Now let's see block level. अब हम बात करेंगे next level जो कि है block samiti, right? So the next level of governance is at the block level. Village level के बाद जो next level आता है वो है block level. Number of villages combined together to form a block. So एक या एक से ज़्यादा villages combine करके एक block बनाते हैं. They have different names in different states. They may be known as पंचायत समिति. कहीं पर इसे ब्लॉक समिति कहा जाता है, कहीं पंचायत समिति, कहीं खंड समिति, कहीं क्षेत्रीय समिति etc. So different states में इस ब्लॉक लेवल जो ब्लॉक समिति है उसके different names हैं. It has the following representatives, right? कौन कौन लोग involved होते हैं, members कौन होते हैं? The सरपंच ऑफ दी ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती हैं उनके सरपंच ब्लॉक समिति के मेंबर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इसमें. देन मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हु बिलोंग टू दैट ब्लॉक. नाउ व्हाट इज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हमारी मेन लॉ मेकिंग बॉडी है, राइट? हमने बात किया था लेजिस्लेचर की, ये हमारी मेन जो लॉज बनाती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है, राइट? सो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी इसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. नाउ व्हाट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल? सो लेजिस्लेटिव असेंबली जो लॉज पास करती है उनको रिव्यू करना, रिवाइज करना, वो सब लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम होता है. ये चेक करना कि कहीं कोई डिसीजन बहुत जल्दी में तो नहीं ले लिया गया है. सो ऑल दोज उसको रिव्यू करना लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम होता है, राइट? सो सरपंच होते हैं इसके रिप्रेजेंटेटिव्स, MPs होते हैं, MLAs एंड MLCs who belong to that block, जो उस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं. They have some nominated members of scheduled castes and scheduled tribes, ये लोग भी होते हैं साथ में. And then there is a block development officer जिसे BDO कहा जाता है, right? Now what are the functions of this block committee? It makes plans for the overall development of the entire block. पूरे ब्लॉक की डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं by the block committee. It engages teams of experts and specialists in various fields like agriculture, veterinary sciences, health and education to help the people. So अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स लिए जाते हैं और उनकी टीम बनाई जाती है. और एग्रीकल्चर की फील्ड से एक्सपर्ट लिए जाते हैं, वेटरिनरी साइंसेज, हेल्थ और एजुकेशन, और तरक्की के लिए उनको एक टीम बनाई जाती है और प्लान किया जाता है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ब्लॉक. इट सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ द विलेज पंचायत. जो पंचायत होती हैं उनकी फंक्शनिंग को भी सुपरवाइज करती है ब्लॉक समिति. इट प्रोजेक्ट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स टू द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़. अब अगर कुछ अपने ब्लॉक की डेवलपमेंट के लिए यू नीड सम मनी, तो वो आप आगे, ये जो ब्लॉक समिति का काम होता है ये उस रिक्वायरमेंट को आगे स्टेट गवर्नमेंट तक और सेंट्रल गवर्नमेंट तक उस रिक्वायरमेंट को आगे पहुंचाती है. It draws the attention of the state and central government towards major problems faced by the people of their block if they are unable to manage them. So अगर गवर्नमेंट का ध्यान लोकल लोगों के प्रॉब्लम्स पर नहीं जाता है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ब्लॉक समिति टू टेक इनटू गवर्नमेंट्स नोटिस, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस में उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लेकर आना ब्लॉक समिति का काम है. Now what is the source of income for block samiti? So they are usually funded by the government of the state. State government ही fund करती है block समिति को, right? Now let's talk about जिला परिषद. This is next level of government, district level पे. जिला means district. This is the third level of पंचायती राज system. ये third level की government है. It makes plans for the development of the entire district. इस गवर्नमेंट का काम होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का ध्यान देना, उसकी डेवलपमेंट का ध्यान देना, राइट? इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द ब्लॉक समिटीज एंड द स्टेट गवर्नमेंट. जो जिला परिषद है वो एक लिंक होता है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि हमारा फोर्थ लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम है. सो
स्टेट गवर्नमेंट और ब्लॉक समितिज के बीच का लिंक होता है ये जिला परिषद. द जिला परिषद हैज़ द फॉलोइंग मेंबर्स, हेड्स और प्रमुख ऑफ द ब्लॉक समिति के जो प्रमुख होते हैं वो MPs, MLAs as well as MLCs from that district. They are also members of the Zilla Parishad. Chairpersons of the municipal boards के जो chairpersons होते हैं they are also the representatives, and the representatives of scheduled caste and scheduled tribes. So all these form the Zilla Parishad. The members elect a chairperson and a vice chairperson among themselves who presides over their meetings. The district commissioner is the chief executive officer of the Zilla Parishad, right? So ये जो जितने भी ये members हैं ये सब मिलके एक chairperson और एक वाइस चेयरपर्सन चूज करते हैं जो मीटिंग्स को हेड करता है, वो प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स, जितनी भी मीटिंग्स उनकी होती हैं उनको हेड करता है, जो मेंबर वो इलेक्ट करते हैं. एंड जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है, राइट, ही इज द CEO ऑफ द जिला परिषद. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द जिला परिषद, क्या काम करती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ऑल वर्क्स इन द डिस्ट्रिक्ट. उस ज़िले में, उस डिस्ट्रिक्ट में होने वाले सारे जो वर्क्स हैं उनको गवर्न करती है ज़िला परिषद. इट मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स, पूरे डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने के लिए जो प्लान्स बनाती है वो ज़िला परिषद है. इट इन्फॉर्म्स एंड फॉरवर्ड्स रिकमेंडेशंस टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स रिगार्डिंग डेवलपमेंट. सो जो भी उन्हें डेवलपमेंट चाहिए होती है वो आगे उस इंफॉर्मेशन को स्टेट गवर्नमेंट तक लेकर जाती है. It supervises and implements all projects funded by the state or central government. अब जो भी डेवलपमेंट के लिए जो प्लान्स होते हैं उनके लिए जो फंड्स आते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उन सब प्लान्स को उन सब प्लान्स को सुपरवाइज करना, इम्प्लीमेंट करना, दिस इज ऑल द वर्क ऑफ जिला परिषद. इट रेगुलेट्स फंड्स अलॉटमेंट्स टू दी ब्लॉक्स. जो ब्लॉक्स को जो फंड अलॉट होते हैं वो जिला परिषद करती है, राइट. सो ये तो फंक्शंस हो गए. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम, इनके पास पैसा कहाँ से आता है? जिला परिषद आर फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड हैव शेयर इन लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस, लाइसेंस फीस एटसेट्रा, राइट. सो स्टेट गवर्नमेंट भी इनको पैसा देती है एंड दे ऑल्सो हैव शेयर इन दी लैंड रेवेन्यू. लैंड से जो पैसा आता है उसके अंदर भी इनका शेयर होता है, टैक्सेस में भी शेयर होता है. Then they also have share in license fees etc. So ऐसे इस तरीके से इनको पैसा मिलता है for the developments. The various levels of governance have one purpose to ensure the welfare of the people and the development of the areas under their jurisdiction. So the various levels of governance have one purpose. क्या purpose है उनका? To ensure the welfare of the people. लोगों की भलाई ही उनका एक मेन सोल पर्पस जो है उनका, वो लोगों के लिए, लोगों के हित में कार्य करना है, राइट. जितने भी किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करें. एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज अंडर देयर जुरिस्डिक्शन, जो उनके एरियाज जो उनकी अथॉरिटी के अंडर आते हैं उनको डेवलप करना, उनका डेवलपमेंट का जितना भी काम है वो उस लेवल ऑफ गवर्नमेंट का काम है, राइट. दे आर लाइक द लिंक्स ऑफ अ चेन विच हेल्प्स द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द पीपल ऑफ द कंट्री, राइट. तो ये एक चेन की तरह है, लाइक लिंक है, जिससे कि जो स्टेट है, जो सेंटर है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करता है. सो दीज आर ऑल द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. इन लेवल्स के ज़रिए ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल की जाती हैं. नाउ डिस्ट्रिक्ट को कैसे गवर्न किया जाता है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज़ द हाइएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट दी डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर होते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन इन दी होल डिस्ट्रिक्ट. पूरे डिस्ट्रिक्ट की स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ही इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डेप्यूटी कमिश्नर. There are basically three main arms of district administration. इनकी तीन main arms होती हैं, which is police. पहली है police. The police in a district looks after the law and order. So लोग law and order follow कर रहे हैं कि नहीं, peace maintain कर रहे हैं कि नहीं, ये सब देखना पुलिस का काम होता है. There are various police stations in a district which have their own area of jurisdiction. जिनका authority का अपना एक area होता है. The strength of the police force in a district can vary depending on the area of prevailing law and order situation. अब किसी एरिया में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं,
तो वहाँ पे नंबर ऑफ पुलिसमैन होंगे ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा पुलिस अपॉइंट की जाएगी। और कुछ एरियाज़ काफ़ी पीसफुल होते हैं तो वहाँ पर कम पुलिस अपॉइंट की जाती है। सो इट डिपेंड्स ऑन दी एरिया, किस टाइप के एरिया की आप बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पुलिस फोर्स वहाँ पर कितनी है। नाउ व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस? Their duty is to prevent crime and ensure that people live a safe life in their area of responsibility, right? हर एक पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उनकी अथॉरिटी उस एरिया में ही होती है, राइट? सो ये उनकी ड्यूटी है कि वहाँ पर कोई क्राइम ना हो या फिर जो वहाँ के जो लोग हैं वो एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में जिए। तो वहाँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पुलिस की होती है जो जिसका जुरिस्डिक्शन उस एरिया को बिलोंग करता है। Anyone who has a complaint about being harmed by way of bodily injury, stolen property, robbery or cheating can approach the police station with his or her complaint. So कोई भी इशू होता है, किसी ने आपको हर्ट किया है, फिजिकली हर्ट किया है या आपके कुछ सामान चोरी कर लिया है या कोई भी डिस्प्यूट होता है आपका, तो आप पुलिस में जाके आप कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। The police in duty is bound to investigate the matter and bring the guilty to book. So पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करें, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें एंड जो गिल्टी है उसको पनिश करें। Even if a person feels threatened by someone, he or she can seek protection from the police. अगर किसी पर्सन को किसी से कोई भी थ्रेट है, राइट, कोई धमकी दे रहा है, अगर आपको लगता है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, देन यू कैन गो टू द पुलिस स्टेशन और आप उनसे प्रोटेक्शन की डिमांड कर सकते हैं। दे विल प्रोटेक्ट यू। द पुलिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट नो वन डिस्टर्ब्स नॉर्मल पीस, की जो नॉर्मल पीस है उनके एरिया का कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। सो ये सब भी पुलिस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे टेक स्टेप्स टू चेक एंट्री एंड एग्जिट रूट्स इन फेयर्स, मार्केट्स एंड कीप अ वॉच ऑन एंटी सोशल एलिमेंट्स। अब जो फेयर्स लगते हैं, राइट, उनकी एंट्री और एग्जिट पर पुलिस तैनात होती है, वो ध्यान रखती है कि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स जो लड़ाई झगड़ा कराते हैं, मिसक्रिएंट्स होते हैं, उनका ध्यान रखना भी पुलिस का काम होता है कि कोई भी वहाँ के उस फेयर का उस बाज़ार का कोई भी पीस डिस्टर्ब ना करे। They are supposed to keep a vigil during festivity so that there is no trouble by miscreants. अब जब फेस्टिवल्स होते हैं तब भी पुलिस बहुत ज़्यादा चौकन्नी होती है, विजिलेंट होती है कि कोई भी उपद्रवी कोई भी अनरेस्ट या डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश ना करे। The police maintains a jail at the district level. Anyone who commits a crime can be jailed by the magistrate. So district level पर पुलिस अपनी एक जेल मेंटेन करती है और कोई भी जो कोई क्राइम कमिट करता है तो मैजिस्ट्रेट उसको जेल कर सकते हैं। The police then ensures that the criminal remains in jail for the period of his or her punishment. अब ये पुलिस का काम है कि जितने टर्म की उसको जेल हुई है वो पर्सन उतने टाइम के लिए जेल में रहे, ये पुलिस इंश्योर करती है। The police has a lockup or a cell in the police station where they can keep a suspected criminal for a short period till such time the investigations are on. अगर किसी पुलिस को किसी पर कोई शक होता है, कोई प्रॉब्लम हुई है, उसका शक अगर किसी पर होता है, पुलिस को अगर किसी पर कोई शक होता है तो उनके पास लॉकअप्स होते हैं, सेल्स होते हैं जिसके अंदर दे हैव द राइट टू कीप द सस्पेक्टेड पर्सन। जितने टाइम इन्वेस्टिगेशन चल रही है उतने टाइम वो उस पर्सन को लॉकअप में बंद रख सकते हैं। दे हैव द राइट, उनके पास लॉकअप और सेल्स होते हैं। नाउ लैंड एंड रेवेन्यू, उनका ये दूसरी आर्म, हम बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, राइट। इट इज़ दी, उनकी जो तीन मेन आर्म्स हैं, फर्स्ट आर्म इज पुलिस, सेकेंड आर्म इज लैंड एंड रेवेन्यू। The maximum disputes among the people living in a society are due to ownership of land, right? ज़्यादातर जो लड़ाई झगड़े लोगों के होते हैं वो ज़मीन को लेकर ही होते हैं, लैंड को लेकर होते हैं। Every person wishes to own some land to live or to cultivate it for food and other income. हर पर्सन को लैंड चाहिए, रहने के लिए चाहिए या फिर उसमें उसको कल्टिवेट करने के लिए, उसमें क्रॉप उगाकर पैसे कमाने के लिए लैंड चाहिए। Land is costly and it causes lot of disputes to arise. There are fights between the members of the family on sharing land, especially at the time of inheritance. So लोगों के आपस में ही झगड़े हो जाते हैं फैमिली मेम्बर्स के एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस। जब कोई जो आपकी फैमिली का जो बड़ा है,
राइट, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो उनके बच्चे होते हैं वही लैंड के लिए लड़ाई करने लगते हैं फॉर देयर शेयर. The government also collects revenue from the owner which is based on the land owned for agricultural purposes. It is therefore important to maintain records of land ownership, right? So government ये जो land के agricultural land से भी revenue collect करती है. It is therefore important to maintain records of land ownership. इसलिए government के लिए ये important हो जाता है इस चीज़ का record रखना that which land belongs to which owner. So ये सारे के सारे records government को रखने होते हैं, right? So next is patwari. The maintenance of land records and collection of revenue is a major function of the administration. अब ये land के सारे records रखना पटवारी की जिम्मेदारी होती है, right? The land and revenue collection is done by the revenue officers. तो land और revenue collection है वो सब revenue officers करते हैं. At the basic village level, a nominated employee of the revenue department maintains all records of land ownership, right? अगर हम एक basic हम village level की बात करें तो वहाँ पर एक person होता है a nominated employee of the revenue department, right? revenue department का एक employee basic level पर village level पर सारे के सारे lands की ownership maintain records maintain करता है. ownership के जितने भी records हैं वो सब maintain करता है and such a person is known as patwari. The patwari is known by other names in different religions like lekpal or karamchari etc. and these are the duties of the patwari to maintain a detailed map of the area. पूरे area का एक detailed map maintain करना पड़ता है पटवारी को. To measure and divide it into parts called खसरास. अब उस land को measure करना और उसको parts में divide करना और उन divided parts को बोला जाता है खसरा. To measure, mark and record the ownership of land on a map. एक map पर detailed map पर हर land को measure करके right उसे mark करके और वो land किसको belong करता है उसका owner कौन है ये सब map पे mark करना record करना पटवारी का काम है. Use a tool of chain and links to measure land, right? एक बहुत पुराना system है land को measure करने का tool है जो चेन से किया जाता है, राइट? लिंक्स की चेन, लिंक्स वाली चेन होती है, इस तरीके से चेन बनती है लिंक्स से, राइट? सो कैसे मेजर किया जाता है लैंड को? उस चेन से, राइट? चेन से मेजर करते हैं. अगर तो ये देखा जाता है कि कितनी फुल चेन्स है एंड देन दे ऑल्सो सी अगर कितने लिंक्स हैं. तो चेन एंड लिंक, सपोज एक लैंड है जिसमें 3 तो वो फुल चेन आ गई और कुछ लिंक्स. नेक्स्ट बारी जब मेजर किया तो पूरी चेन नहीं आई. सो कुछ कितने लिंक्स हैं, इस मेथड से, इस टूल से मेजर किया जाता है लैंड को. टू अपडेट द रिकॉर्ड्स एज एंड व्हेन इट इज सब डिवाइडेड और द ओनरशिप इज चेंज्ड. किसी भी लैंड को जब जब सब डिवाइड किया जाएगा या फिर उसका ओनर चेंज होगा, जब भी ओनरशिप चेंज होगी उस लैंड की, तो उसे रिकॉर्ड करना पटवारी का काम है. टू मेंटेन अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ कॉमन लैंड ऑफ द विलेज विच इज फॉर grazing, festivities etc. No one is allowed to crop on this public land. एक separate land maintain करना, right? उसका record जिस पर कोई festival होगा तो festivities celebrations होंगे या फिर जो grazing के लिए जो lands होते हैं इसका ध्यान रखना कि कोई वहाँ पर farming ना कर सके, कोई भी crop ना उगा सके. To keep a record of crops grown on the various patches of लैंड, उन क्रॉप्स का भी रिकॉर्ड रखना जो डिफरेंट डिफरेंट पैचेस ऑफ लैंड में उगाई जाती हैं, उनका रिकॉर्ड रखना भी पटवारी का काम है. टू गिव इंफॉर्मेशन टू डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स अबाउट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप सो दैट द रेवेन्यू कैन बी चार्ज्ड. सो क्रॉप की सारी इंफॉर्मेशन देना कि कैसी क्वालिटी हुई है, कितनी क्वांटिटी है क्रॉप की. सो ये सब इंफॉर्मेशन जो पटवारी है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को देता है, जिसके बेसिस पर रेवेन्यू चार्ज किया जाता है. To collect revenue from the owners of land, जो land owners हैं उनसे revenue लेना भी पटवारी का काम है. And to inform the district authorities in case there is failure of crop due to floods, famine etc. अगर कुछ crops में problem आती है, crops फसल अच्छे से नहीं होती है, फसल बर्बाद हो जाती है floods की वजह से या famine यानी सूखे की वजह से, बारिश ना होने की वजह से, तो ये information भी पटवारी ही district officers तक, district authorities तक पहुँचाता है. Right? Next we have Tehsildar. Okay, the functioning of Patwari is supervised at the next level
ऑफ तहसील और तालुका बाय दी तहसीलदार। अब पटवारी के ऊपर कौन सुपरवाइजर करता है पटवारी को? तहसीलदार। द तहसीलदार इज द रेवेन्यू ऑफिसर at the तहसील लेवल which has many villages under it. Okay, so तहसीलदार कौन होता है? रेवेन्यू ऑफिसर होता है, ये होता है तहसील लेवल पर एंड उसके अंडर बहुत सारे विलेजेस आते हैं। दिस लेवल इज अ सब डिविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सो जो तहसील है वो डिस्ट्रिक्ट का सब डिविजन है। द तहसीलदार इंश्योर्स दैट द रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड प्रॉपर्ली एंड द रेवेन्यू कलेक्टेड इज डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। सो तहसीलदार ये मेक श्योर करता है कि रिकॉर्ड्स जो पटवारी ने सारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जिन रिकॉर्ड्स की बात की गई है वो सारे रिकॉर्ड्स ठीक से मेंटेन किए हैं या नहीं, एंड जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है उसे गवर्नमेंट तक डिपॉजिट किया है या नहीं, ये सुपरवाइज करता है तहसीलदार। He also hears the dispute of land at his office and gives his judgment after verification of records maintained by the पटवारी। अब जो जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं लैंड को लेके वो सब उनकी सुनवाई करता है तहसीलदार और उनके रिकॉर्ड्स को चेक करता है। जो पटवारी के रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी बेसिस पर डिसीजन देता है। राइट, नाउ वी हैव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। द हाईएस्ट लेवल ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू फॉर रूरल एरियाज इज द district headquarters. The district collector or the district magistrate is responsible for all the revenue and land related aspects in the district. So district में जितने भी revenue से related या land से related जितनी भी problems होती हैं उन सबको district collector या district magistrate जिसे कहते हैं वो look after करते हैं, वो responsible होते हैं। Here are the responsibilities of district collector: to ensure the functioning of all tehsildars and patwaris in the district. अब पटवारीज को सुपरवाइज करते हैं तहसीलदार और उन दोनों को सुपरवाइज करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। राइट, टू हियर ऑल लैंड डिस्प्यूट्स एंड टू जज देम। जितने भी लैंड डिस्प्यूट्स हैं उनको सुनते हैं और उन पे डिसीजंस पास करते हैं। टू इंश्योर दैट द रेवेन्यू इज कलेक्टेड इन टाइम एंड डिपॉजिटेड। ही मेक श्योर कि रेवेन्यू जो है वो टाइमली कलेक्ट हो रहा है और डिपॉजिट किया जा रहा है गवर्नमेंट के पास। टू असेस and give informations to the government on matters on compensation in case of crop failure, flood or famine. Right, so अगर कभी पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है राइट किसानों की, तो उसको असेस करना, राइट उसे जज करना और गवर्नमेंट को रेकमेंड करते हैं कि उनको किसानों को कितना कॉम्पेंसेट करना चाहिए, किस हिसाब से कॉम्पेंसेट करना चाहिए, ये सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करते हैं। टू प्रोवाइड रेस्क्यू एंड रिलीफ इन केस ऑफ कैलामिटी। अगर उनके एरिया में कोई भी नेचुरल कैलामिटी हुई है, अर्थक्वेक, फ्लड है, ड्रॉट है, तो उनको रिलीफ प्रोवाइड करना, वहाँ के लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने का काम है रेस्क्यू एंड रिलीफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेंटेनेंस ऑफ सिविक एमेनिटीज। राइट, जो हमारे को गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज देती हैं उनको मेंटेन करना। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन headed by DM or DC has another function to ensure that the civic amenities are provided to the people in the districts, कि लोगों तक जितनी भी amenities हैं, public services हैं, वो सब provide की जाएं। ये काम, ये responsibility है district administration that is headed by district magistrate और district collector की। He has many officers who look after their respective departments and are answerable to the DM, to the district magistrate. Right, बहुत सारे officers appoint किए जाते हैं who look after their respective departments. हर एक को एक अलग department दिया जाता है, उस area में वो काम करते हैं and they are answerable to the DM. If there is any inefficiency in their department, such as public works department, उनका PWD का क्या काम होता है, is looked after by the executive engineer who looks after the maintenance of the government buildings, roads and other infrastructure. जितनी भी एक government buildings हैं, infrastructure है, उसकी responsibility होती है PWD की, Public Works Department की। Then Health Department, उसकी क्या duty होती है? Health Department is under the supervision of Civil Surgeon or the CMO, that is the Chief Medical Officer. ये look out करते हैं हॉस्पिटल्स, दे लुक आफ्टर डिस्पेंसरीज जहाँ से दवाइयाँ मिलती हैं, हॉस्पिटल्स एंड अदर हेल्थ नीड्स। सो द हेल्थ डिपार्टमेंट इज अंडर CMO और द सिविल सर्जन। देन
Education department is looked after by the DEO, District Education Officer, who ensures that all the schools in the district run smoothly. So education department को look after करते हैं District Education Officer, right? Clear? So this is how civic amenities are maintained on the, उसकी administration पर ध्यान दिया जाता है. Clear? So I hope now you have understood how the रूरल गवर्नमेंट रन्स, रूरल लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से उसके क्या लेवल्स हैं, ऑल दी लेवल्स, पंचायती राज सिस्टम. आई होप यू आर क्लियर विद नाउ, राइट? वेरी गुड. नाउ लेट्स सी अ क्विक रिव्यू. देयर आर ग्राम सभा एंड पंचायत ऑन द लोकल लेवल. लोकल लेवल पे ग्राम सभा और पंचायत होती है. पटवारी, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल to look after them, right? The Zilla Parishad, Block Samiti and the Gram Panchayat work at district, block and village level respectively, right? The Zilla Parishad district level पर work करती है, Block Samiti at the block level and Gram Panchayat at the village level. The State Election Commission supervises the election of local self-government bodies, right? जो पंचायत के भी elections होते हैं, they are conducted by the State Election Commission. Clear? Now let's begin with our exercise. A part. Darken the circle of correct option in OMR sheet. We'll look out for the correct option and then you will fill the correct bubble. Number 1. The secretary of the Gram Sabha is appointed by. So, secretary कौन appoint करता है पंचायत का, ग्राम सभा का? Government provide करती है, government appoint करती है. Right? Number 2. The secretary is responsible for calling the meeting of बोथ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत. दोनों की मीटिंग्स को कॉल करना सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नंबर 3. इलेक्शंस फॉर द पंचायत्स आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन. क्लियर? नंबर 4. पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वो किस चीज पर ध्यान देती हैं? दे लुक आफ्टर रोड्स. जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग्स होती हैं, सो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर रोड्स. नंबर 5. चीफ मेडिकल ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर, लुक एट द ऑप्शंस, डिस्पेंसरीज. जो भी मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड चीजें होती हैं, राइट? हॉस्पिटल्स हो गए, डिस्पेंसरीज हो गई, दे आर ऑल लुक्ड आफ्टर बाय द CMO और द चीफ मेडिकल ऑफिसर, राइट? Now next we have fill in the blanks. Number 1. The term Panchayati Raj is originated during the British rule. Number 2. Dash is a meeting of all adults of the village. सारे adults जो होते हैं above 18 villages जो होते हैं उनकी meeting को क्या बोलते हैं? ग्राम सभा. Number 3. The न्याय पंचायत gives decisions on all dash cases. कितने भी जो minor cases होते हैं उनमें न्याय पंचायत decision देती है, right? Number 4. The dash is the revenue officer at तहसील level. तहसील level पर होते हैं तहसीलदार. And number 5. Dash is the head of the block samiti. इनके head को बोलते हैं block प्रमुख. Block प्रमुख, right? Now C part is true and false. Number 1. Panchayati Raj is the lowest level of the government. Yes, it is true. Number 2. Each district has many blocks. Yes, true. Police has a lockup cell in the police station. Yes, true. Number 4. Civil surgeon looks after the hospitals. Yes, he does. True. Tehsil is a subdivision of state. No, it is a subdivision of district. So it is false. Clear? Now these are detailed question and answers, children. Kindly attempt them yourselves. This we come to an end of this chapter, children. I hope you now have a good understanding of the rural government, right? Various levels of government,
पंचायत के बारे में, ग्राम सभा के बारे में I know you have a good understanding now, good information, right? So I hope to see you in the next chapter, children. Till then, you all stay blessed and stay tuned. Bye bye.